please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. Hello there. Welcome to this Network 18 special. Welcome to our special campaign, which I think will go a long way in redefining the way education is being imparted in this country, redefining the interface which exists between the youth of the country and those who are the key stakeholders, key providers of education. Alarm bajne se pehle jago re, Tata Tea campaign in association with Network 18. This campaign, which has been out now on the network for quite a while, reaching out to every corner of the country, inspiring people to act and bring about a change. 1.8 million Indians, look at the numbers, 1.8 million Indians have already signed these two petitions started by this campaign, making sports a compulsory subject in schools, making gender sensitization two of the most important requirements of our times. अलार्म अभी बजा नहीं, किसान अभी मरा नहीं, खिलाड़ी अभी हारा नहीं, और अभी यहाँ रेप हुआ नहीं। किसान को आत्महत्या करने दो, मेडल हारने दो और रेप होने तो दो। अलार्म थोड़ा बजने तो दो। अलार्म बजे तो हम उठेंगे, फिर हड़ताल पर जाना है, फेसबुक पे गुस्सा दिखाना है, एक्टिविज्म को जगाना है। पर फिलहाल अलार्म बजा नहीं। अगला अलार्म बजने से पहले जागो जागो जागो। टाटा टी। अब वक्त आ गया है, जागो इंडिया। अगर हम अभी नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी। दिल्ली और मुंबई की सड़कों से लेकर सोशल मीडिया के गलियारों तक टाटा टी के अलार्म बजने से पहले जागो रे अभियान ने लोगों को घटना से पूर्व सचेत रहने के प्रति और एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के प्रति प्रेरित किया है। अब लोग आगे आ रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं, ताकि स्कूलों के पाठ्यक्रम में लिंग संवेदीकरण को अनिवार्य किया जाए, जिससे भारत को महिलाओं के प्रति सम्मान और संरक्षण प्रदान करने वाला एक राष्ट्र बनाया जा सके, और स्कूलों में खेलों को एक अनिवार्य विषय बनाया जाए ताकि भारत में खेलों के प्रति रुझान बढ़ सके। उन्होंने केवल याचिका ही दायर नहीं की है, बल्कि अपने निजी जीवन में भी परिवर्तन लाने का प्रण लिया है। I काजल डागर, कृतिका सचदेवा, टीना अग्रवाल, नीजा ऋषि, नीता अरोड़ा, शपथ लेता हूँ लेजेंड इंश्योर that change begins at my home. बदलाव की शुरुआत मैं अपने घर से करूंगी। to ensure change begins At my home, and will support And that I will support one local sport event and practice gender sensitivities with my children, my own daughter. विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए प्रेरणादायी शख्सियतों ने पूर्व सक्रियता के प्रति अपना समर्थन दिया है। अलार्म बजने से पहले जागो ले, क्योंकि इतनी ज्यादा समस्याएं बढ़ गई हैं कि वो जब बाढ़ का पानी आता है ना, कोई घर नहीं छोड़ता है। सबसे पहले जब तक आप पुरुषों से बात नहीं करेंगे, यंग बॉयज से बात नहीं करेंगे, तो आप कैसे बदलाव कर सकते हैं? और सबका फैसला एक है। Sports is an amazing opportunity for national pride. स्कूल में अगर हो जाए स्पोर्ट्स तो सारे बच्चे स्पोर्ट्स करेंगे और बाहर से 10 से 8 तो निकलेंगे। पूरे भारत में 18 लाख से ज्यादा लोग इस आंदोलन का हिस्सा बन गए हैं और उन्होंने बदलाव के लिए याचिका दायर की है। The idea is pre-activism and not activism if we actually want to make a change. और अब समय है लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सदस्यों का इस मुहिम पर निर्णय लेने का, ताकि वो इस अभियान को सफल बना सकें। अब वक्त आ गया है, अलार्म बजने से पहले जागो रे। Today we're culminating this entire campaign with a very special guest and special audience here as well. Union HRD Minister Prakash Javadekar joining us. Namaste. Good morning, sir, and welcome. Welcome to the special campaign. And what a great pleasure to also have with us those who frankly have the real questions to the man who's supposed to be the in charge, the main principal of the entire education system. We have students from different schools who are all here, and many of them have a lot of questions. So we will hopefully
be having some kind of a narrative, some kind of a clear picture of what are the challenges, what is the road ahead when it comes to ensuring that Indian education system becomes a wholesome experience, a wholesome product, if you were to really use a commercial term. So, Mr. Javadekar, would you enlighten this audience, sir, about what are the kind of key steps which your government is planning to take? पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप सब लोग आज यहाँ आए और ये पिटीशन लेकर आए कि स्पोर्ट्स कंपलसरी करो, और ये पिटीशन लेकर आए कि जेंडर सेंसिटाइजेशन का सही पाठ मिले, सही शिक्षा मिले. दिस इज रियली ए वेलकम step, and therefore I am very thankful to Network 18, because I believe that education is not just a government's responsibility, or it's only a transaction between a school and the parents and the students and teachers. It has to be a societal action. And therefore, partnership of media is very important, because media, if it plays a part, it can reach out to more people more effectively. And therefore, I first welcome this. आप चलते हो, दौड़ते हो, खेलते हो, उससे आनंद है, और वो आज नहीं होता है, क्योंकि मुझे ये लगा, मैंने जब इसका अध्ययन किया कि क्यों नहीं स्पोर्ट्स में जाते हैं, अब इसका कारण मैंने एक ढूंढ निकाला कि इस पोर्शन ही इतना है, पोर्शन इतना ज़्यादा है हर विषय का, इतना पोर्शन होने की जरूरत नहीं है. तो मैंने तो एनसीईआरटी को कहा है कि पहले पोर्शन आधा करो, तो मुझे ये स्पोर्ट्स, वैल्यू एजुकेशन, लाइफ स्किल एजुकेशन और उसके साथ साथ एक्सपीरियंशियल लर्निंग, नहीं तो सर क्योंकि यही तो जीवन है. लेकिन एक देखिए ना, आपने जैसे ही बोला, आपने कि आपने एनसीईआरटी को बोला कि थोड़ा एकेडमिक करिकुलम कम करो, देखिए बच्चे सब कितना खुश हुए यहाँ पे. नहीं, लेकिन उसके साथ साथ ये सब करना है. नहीं, लेकिन फिर ये बताइए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी से आदमी का जीवन बनता है. मैं ये जानना चाहता हूँ सर, क्या आपको लगता है कि 2018 में जब हम अच्छे दिन की बात करते हैं जनता के लिए, क्या ऐसा संभव है कि भारत में जो शिक्षा प्रणाली है, बिल्कुल, जो स्कूल्स हैं, वहां पर अगर आप 6 घंटे अगर आप स्कूल में बिताते हैं, क्या आप 6 घंटे में से आप अनिवार्य होना चाहिए क्या कि आप 1 घंटा कम से कम होना चाहिए? और मैं एक बताना चाहता हूँ कैसे संभव होगा. स्कूल्स क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उन्होंने खाने बनाए हैं कि ये नॉर्मल टीचर्स है, वो नहीं फिजिकल एजुकेशन लेंगे, फिजिकल एजुकेशन का अलग टीचर होगा. यहाँ विद्या भारती के स्कूल्स है, देश भर में 13,000 स्कूल्स है. तो उन्होंने क्या किया, 13,000 स्कूल में 31 लाख स्टूडेंट्स हैं और लगभग 1 लाख टीचर्स हैं. तो एवरी टीचर हैज बिकम फिजिकल एजुकेशन टीचर. एक नया मॉडल है कि जहां हमने ये देखा है, अभी मैंने एक शिविर किया था जिसमें फिजिकल एजुकेशन में काम करने वाले 30 संस्थाओं ने अपना अपना प्रेजेंटेशन दिया अनुभवों का, और उसका निचोड़ लेके हम आगे बढ़ रहे हैं. राज्यवर्धन राठौड़ जी और हम दोनों मंत्रालय मिलकर ये तय कर रहे हैं कि स्पोर्ट्स को 1 घंटा अनिवार्य हो, और ये पहली आपकी मांग मैंने स्वीकार की है. ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दैट. 1 घंटा डेली अगर हमारे स्कूल में देश भर में अगर बच्चे खेलेंगे तो इससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता. लेकिन आपने एक बहुत जरूरी बात कही, and I just want to put this question to some of the teachers here. Maybe ma'am, you could throw some light on that. See, there are two sides to every story. On the upside, बहुत अच्छी बात है कि that way you ensure that as teachers we are also fit. But at some level, it also comes across as a slightly, with all due regards, the specialization he said will be done by somebody else. तो ये बहुत on the face of it बहुत अच्छी बात है कि everybody is getting into sports and monitoring them, but you also need a specialized coach. That is different. They will be there. They will be there as per the school policy or school budget or whatever it is. But the essence is छात्रों को दौड़ाना है. I think you're making a very important point. We'll just take this question from the student and then I'll go back to the teachers. Sir, I'm Chirag Sandhu from Modern School Vasant Vihar. Sir, I have a question for you. So, like you said that भागना दौड़ना 1 घंटे में. But sir, आपको नहीं लगता that there should be proper talent identification for those who can actually play a sport well and they can be trained more in that 1 hour? पहले आप समझ लो, मैं 26 करोड़ स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ. 26 करोड़ खिलाड़ी नहीं होते. क्रिकेट खेलने वाले नेशनल लेवल के 100 खिलाड़ी होते हैं.
200 खिलाड़ी होते हैं। स्पोर्ट को जीवन दिनचर्या में रखिए। लेकिन स्पोर्ट्स के बिना यानी फिजिकल एक्टिविटी, आप इसलिए स्पोर्ट्स मत कहो, मैं तो उसको फिजिकल एक्टिविटी कह रहा हूँ। बेसिक फिजिकल एक्टिविटी इज द बिगिनिंग ऑफ एनी स्पोर्ट्स। बच्चे में क्या रुचि है, क्या क्षमता है, ये समझता है, और माँ जैसा कोई परीक्षक नहीं हो सकता कि जो बराबर समझती है कि अपने बच्चे में क्या टैलेंट है। तो माँ और शिक्षिका दोनों का देखिए, दोनों का रोल बहुत। तो एक और शिक्षिका से एक सवाल लेते हैं। Sir, I have a practical question here. I really appreciate the philosophy behind this notion that we are thinking of all the students here. But are there any proposals to integrate physical education into the B.Ed curriculum? From 1920, the new course will be only integrated B.Ed course. So that has been already declared in the budget also this time, because we believe and Prime Minister believes कि जैसे लॉ बनना है, जिसको वकील बनना है वो 5 साल का कोर्स करता है, जो इंजीनियर बनना है वो इंजीनियरिंग का कोर्स करता है, डॉक्टर बनना है डॉक्टर का कोर्स करता है, आर्किटेक्ट बनना है आर्किटेक्ट का कोर्स करता है, लेकिन टीचर कोई भी बन सकता है, ऐसा नहीं है। अब टीचर के लिए 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स होगा, बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड, वो करेंगे। यही अब नई शुरुआत है, तो उसमें स्पोर्ट्स है। Wonderful. Let's take a break. Let's take a break on this. Welcome back to our special on Network 18. अलार्म बजने से पहले जागो रे। I'm just wondering कि स्पोर्ट्स को एक वायबल करियर ऑल्टरनेटिव, यहाँ पे इतने जितने बच्चे बैठे हैं, मैं आप सबसे अगर पूछूं कि आप में से कितने लोग हैं जो कि खिलाड़ी बनना चाहते हैं, हाथ उठाइए ऊपर। माइनॉरिटी, कम लोग हैं। आप क्या खिलाड़ी बनना चाहते हैं? क्या खेलते हैं क्या आप? You also play basketball. Now tell me, if you want to be a professional basketballer, yes, sir, what are the kind of hurdles, challenges क्या हैं आपकी राह में? So first of all, the facilities in India, I would say, I have played nationals in baseball, and the problem is I went to the camp. The camp conditions are not quite well. That discourages the parents a lot. That discourages the children itself. अब ऐसी स्थिति में, how will you ensure, sir, that your intent of integrating physical education? No, पहले तो आप फिर क्या कर रहे हो? नहीं, physical education की बात हो रही है। आपका हमारा 2 लेवल पे हम विचार कर रहे हैं। मैं 26 करोड़ छात्र फिजिकल एक्टिविटी 1 घंटा कुछ न कुछ करके उनको पसीना आना चाहिए, ये हमारा मूल कार्यक्रम है। ये अलग है और ये जो कह रहा है ये अलग है। ये तो आप राज्यवर्धन राठौड़ से भी बात करिए, क्योंकि स्पोर्ट्स में नरेंद्र मोदी जी की जो दृष्टि है वो ऐसी है कि सारी इंफ्रास्ट्रक्चर भी कैसा अच्छा करे, सब जगह फैसिलिटीज उपलब्ध भी कैसे कराए, और एक नई स्कॉलरशिप शुरू की है कि जो बडिंग, समझो इसमें अगर टैलेंट है वो कोच सारे चैलेंज मोड में देखेंगे कि ऐसे 100 प्रतिभावान 1000 छात्रों को 6 लाख रुपए प्रति साल का, एवरी ईयर 6 लाख रुपये स्कॉलरशिप अब नई घोषणा की है, और जो देने वाले हैं, और वो उनको समझो 14वें साल में शुरू होगी तो 24वें साल तक, जब तक उसका करियर एकदम बनता है तब तक वो मिलती रहेगी। ये एक नया स्कीम पहली दफा भारत में 70 साल के बाद हुई है, और 6 लाख रुपए इज नॉट ए स्मॉल अमाउंट। यू नो, आई एम जस्ट थिंकिंग प्रकाश जी कि क्या ये संभव है कि जिस प्रकार से बच्चे स्कूल में क्लास टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट होता है, ये जो आप फिजिकल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि बेहतर ये होगा या स्टूडेंट्स को मोटिवेशन मिलेगी अगर बच्चे, वो बच्चा जो हर दिन 1 घंटा भागता है, स्कूल के 5 राउंड लगाता है, मान लीजिए उसका जब भी टेस्ट होता है उसको 1 मार्क या 2 मार्क अगर उसको ज्यादा मिले, क्या ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ेगा? नहीं, इसलिए मैंने कहा ना 3 उपाय करने पड़ेंगे। कि पहला उपाय ये कि आज वो लगातार किताबों में क्यों बैठता है, क्योंकि बहुत ज्यादा पोर्शन है, तो पोर्शन, अनावश्यक पोर्शन को काटे, ठीक करे, मूल क्षमताएं बढ़ाए, विषय का सही ज्ञान हो, इतना ही है। बहुत हर विषय का डिटेल ज्ञान कहाँ कब, ये थोड़ा सा रिकंसिडर करके वो एक करने की बात है। दूसरा, जो समय फिर उपलब्ध होता है
वो स्पोर्ट्स में उसके मार्किंग के स्कोरिंग के सिस्टम भी बदले, फिर क्योंकि उसके बिना नहीं आएंगे। आज जैसे ये कहे एवरीथिंग इज स्कोर्स। Okay, that girl had raised her. Yeah, just stand. Two aspects which I would like to take into consideration and ask you a question is, one is gender pay parity and one is the safety and hygiene. As a lot of them stated, our under 19 football girls team has been for nationals year after year to places like Devas and Satna in Madhya Pradesh, and the conditions that we stay in are appalling to say at the least. And it has been brought into the light that what should be done so that safety is ensured as well as hygiene is ensured for the girls as well as boys. देखो बार बार मैं आपसे सुन रहा हूँ, ये भी एक क्लास एटीट्यूड है, ये हमें समझना चाहिए। मीन्स आई एग्री कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन ये भारत है बाबा, जो है देश में धूल माटी वैसी है, और वो भी हमें समझना पड़ेगा कि वी आर इंडिया, और इंडिया में जो है उसमें इसीलिए तो स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, और वो जनता का आंदोलन बन गया। देखो हम ही बदलेंगे देश को, हम सब मिलके बदलेंगे तो धीरे धीरे सब। आज 6 करोड़ टॉयलेट बन गए, एक कितनी बड़ी क्रांति है। बार बार अमिताभ बच्चन आके क्यों हम कैंपेन चला रहे कि भाई दरवाजा बंद करो, क्योंकि एक सैकड़ों सालों से जो आदत है वो बदलनी है, तो वो भी है। तो ये सब करने के लिए हमारा देश में ही हमें अच्छा बनाना है। So will sports be made compulsory, sir? Yes, definitely. I am very much intent, and मैंने तय किया है कि हम सबको साथ लेके 1 घंटा स्पोर्ट्स या फिजिकल एक्टिविटी होनी ही चाहिए स्कूल में। Some kind of physical activity 1 hour is our definite program. So all students and teachers across India, कृपया ध्यान से सुनिए, मंत्री जी चाहते हैं कि आप सब लोग दिन में 1 घंटा तो अपना पसीना जरूर बहाएं। Let's take a break on this. So on the other side, we'll look at the other question, gender sensitization. हमारे समय की एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या, उस समस्या का क्या समाधान निकल सकता है? हम चर्चा कर रहे हैं स्कूल में खेलों की। क्या ये भी सच नहीं कि स्कूल में लड़कियां जो खेलती हैं और लड़के जो खेलते हैं, क्या उसमें भी तो कहीं कोई भेदभाव नहीं होता है क्या? We'll look at that question on the other side of the short break. Hello there. Welcome to this Network 18 special. Alarm bajne se pehle jago re, Tata Tea campaign in association with Network 18. We're looking at the challenges which are there before the school system in India. Great eclectic gathering here. Union HRD Minister Prakash Javadekar, students and representatives from the House of Tata Tea as well here with us. Prakash ji, क्या ये सच नहीं है कि 2018 में भी स्कूल प्रणाली के सामने जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या है वो ये कि क्या लड़कियां पूरे भारत में, सिर्फ दिल्ली के स्कूलों में नहीं, क्या पूरे भारत में लड़कियां स्कूल जा रही हैं, पढ़ रही हैं? नहीं, स्कूल में तो सभी जा रही है क्योंकि उनको इच्छा है और जा भी रही है। आज देश भर में 98% से ज़्यादा हमारा एनरोलमेंट है। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की संख्या बहुत कम हो रही है, लेकिन उसमें जो आ रहे हैं उसमें लगभग इक्वल पार्टिसिपेशन है। 1-8% का फर्क है, बाकी लड़कियां उतनी संख्या में आती है और 12वीं तक रहती हैं, 12वीं तक रहती हैं कि ड्रॉप आउट हो रहा है। ऐसा है, वो जो है इसीलिए हमने 4-5 योजना की है कि ड्रॉप आउट न हो। क्योंकि पेरेंट्स के मन में क्या होता है, गरीब पेरेंट है तो भाई बच्चे को पढ़ाना है तो दूसरे गांव में भेजना है 8वीं में, तो 8वीं में भेजना है तो रोज एसटी के पैसे हमारे पास नहीं है, तो वो बच्चे को भेजते हैं, बच्चे को नहीं भेजते थे। जब महाराष्ट्र में हम सत्ता में आए 95 में, तो हमने गर्ल्स को एसटी का ट्रैवल शिक्षा के लिए फ्री कर दिया, और फ्री कर देने से 6 लाख लड़कियां उसका फ़ायदा लेने लगी। इसका मतलब 6 लाख का अगर बंद हो जाता, वो शुरू रहा। तो इस तरह के बहुत सारे, सबको अभी साइकिल दिया है अनेक राज्य सरकारों ने, तो साइकिल से आने लगी।
खुद की देश की भी स्थिति बदल गई तो घर की भी स्थिति बदल गई। अब पेरेंट्स का भी थोड़ा दिमाग में आया कि बच्चे को भी पढ़ाना चाहिए। तो ये एक बात तो रही इक्वालिटी की, लेकिन जो दूसरी ज्वलंत समस्या है, जो ज्वलंत मुद्दा है, वो है जेंडर सेंसिटाइजेशन। ये विषय इस चैनल ने, नेटवर्क 18 ने उठाया, मुझे बहुत खुशी इसलिए है क्योंकि देश का ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। देखो, प्रकृति ने, नेचर ने पुरुष और स्त्री दो तैयार किए, और केवल मनुष्य में नहीं, सभी प्राणी जात में भी। तो ये सृष्टि का नियम है, मेल फीमेल। तो ये जो नियम है उसको समझे, उसको सही तरीके से समझे कि ये बहुत फिजिकल फीचर्स अलग होंगे लेकिन इक्वल है। बहुत हर एक के प्रॉब्लम्स या स्ट्रेंथ अलग होगी, लेकिन सब मिलके एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना चाहिए, एक दूसरे को इक्वल समझना चाहिए। तो ये करना चाहिए। ये आज सेंसिटाइजेशन सबसे बड़ी जरूरत है। और आज जो मैं यहाँ जब पढ़ते हैं हम दरिंदी की इतनी खबरें, तो इतना दर्द होता है कि ये कहाँ आ गए हम। तो कहाँ आ गए, क्योंकि समाज बहुत बड़ा है, 130 करोड़ का है। तो 130 करोड़ में यानी 10 करोड़ भी लोग अगर सेंसिटाइज उस तरह से नहीं है, अलग अलग लेवल पे सेंसिटाइजेशन। लेकिन कैसे होगा? और इसीलिए उद्देश्य एक बात है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। पहले तो हमने 3 चीजें की है अभी, और भी करना है। पहले तो एनसीईआरटी के किताबों में पहले केवल किताबों में पाठ होते थे, अब हर किताब का एक जेंडर ऑडिट हम करते हैं कि जेंडर सेंसिटाइजेशन की दृष्टि से उस पाठ से कोई गलत अर्थ नहीं आ रहा है ना, ये पहले देखते जेंडर ऑडिट। दूसरा करते हैं कि टीचर को प्रशिक्षण में मॉड्यूल्स अनेक बनाए हैं, जिसमें हम ये जेंडर सेंसिटाइजेशन के सभी पहलुओं को कैसे छात्रों को स्पष्ट करें और कैसे जेंडर सेंसिटाइजेशन का सही माहौल स्कूल में हो, ये प्रशिक्षण टीचर्स को दिया जाता है। तीसरा, पाठ्यक्रम में आज ज़्यादा नहीं है, वो पाठ्यक्रम में हम डालना चाहते हैं। और एक करते हैं कि जैसे इसने वाकाथॉन कहा जेंडर सेंसिटाइजेशन का, उस तरह के एक्टिविटीज़ तैयार किए हैं और हर स्कूल अलग अलग एक्टिविटीज़ करता है, उसकी कॉम्पिटिशन्स भी होती है। तो एक जेंडर सेंसिटाइजेशन का अच्छा माहौल, क्योंकि स्त्री पुरुष समान है, प्रकृति के ही बच्चे हैं, और ये सब मिलकर ही हम समाज होता है। हर गली, हमारी माँ भी तो एक लड़की है, महिला है, तो वो भी एक ये सोचने की बात है कि ये सोचने की बात और है। पेरेंट्स के बीच किस प्रकार का एक बिहेवियर अप्रोच होना चाहिए, ताकि ये जो स्टेरियोटाइप्स हैं उनको कैसे तोड़ा जाए। लेट्स टेक अ क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन देन। Good morning, sir. I am Pranavi Poddar from DPS Mathura Road, and I wanted to share an incident. Like, I was traveling on a flight, and we had a lady pilot. So, like, many people in the flight, they were making fun that, see, it's a lady pilot. We are not sure whether we will reach our destination or not. Stereotypes. Yeah, so these are the stereotypes. ये भी बहुत है कि लड़की पर यानी महिला है तो उन पर जोक करना, ये बहुत प्रचलित था पहले। अब धीरे धीरे कम होता मुझे दिखाई दे रहा है, अच्छी चीज है, लेकिन ये पूरा समाप्त होना चाहिए। कैसे होगा सर? मैं बता रहा हूँ जरा, एक ही वही तो मैं बता रहा हूँ। जैसे पेरेंट टीचर मीटिंग, इधर का एक, इधर का भी एक लेते हैं। मैम, you'd like to ask a question? We are doing a lot at premium schools, but what about gender sensitization in only girls or only boys school? Because we need to reach out at the global level. मैं को-एजुकेशन में विश्वास रखता हूँ। हाँ, तो सर ये बंद क्यों नहीं कर देते? ये सिर्फ ऐसा है नहीं, लेकिन वो निकालने में कोई प्रॉब्लम है ऐसा नहीं। मैं बता रहा हूँ, मैं पुणे से आता हूँ, वहाँ महात्मा फुले और महर्षि कर्वे ने ये स्त्री शिक्षा का कार्यक्रम शुरू किया। लड़कियों को अलग सिखाने के लिए कम से कम थोड़ा सा समाज तैयार हुआ, और लड़कियों को सिखाने के लिए वो जा रहे थे, इसलिए लोग पत्थर मार रहे थे। आज वी आर ऑल इंडेटेड टू देम बिकॉज दे स्टार्टेड दैट मूवमेंट, इसलिए आज महिला शिक्षा पाकर यहाँ तक आई है। सभी क्षेत्रों में आज नाम उनका हो रहा है, क्योंकि काबिलियत है। देखो, यही देश है जहाँ आज वुमेन एम्पावरमेंट का सर्वोच्च उदाहरण है कि हमारे जो राष्ट्र की सुरक्षा की जो कमेटी कैबिनेट की होती है, उसमें सुषमा स्वराज भी है, निर्मला सीतारमन भी है, डिफेंस मिनिस्टर कोई देश का ये हो, महिला हो, ये भी एक पहली तरह से हुआ है। ये भी एक नया एम्पावरमेंट है।
मैं पहले कहना चाहता हूं कि मेरी माँ जिला परिषद की टीचर थी, मैं जिला परिषद में पढ़ा हूँ, देहात में पढ़ा हूँ, तो इसमें हमारे घर में एक रूटीन था और जेंडर सेंसिटाइजेशन का सबसे बड़ा पार्ट घर में ही शुरू होना चाहिए, ये मेरा मानना है। वो स्कूल की एक्टिविटी नहीं है। मेरे माँ ने, हमें 2 भाई और 1 बहन है, तो हमें घर का सारा काम, सभी काम, खाना बनाने से लेकर पोछा लगाने से लेकर टॉयलेट साफ करने से लेकर हर कोई चीज़, ये तीनों को बांटी थी और उसका रोस्टर हर 3 महीने में बदलता था। तो हमें सब कुछ करना आता है घर का कामकाज। तो ये खाना बना मैं तो अच्छा बना के दूंगा। क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। I wish I could say so. अच्छा नहीं, लिस्ट करते हैं सर। तो मैं आपको बताता हूं। घर में देखिए क्या होता है, घर में अगर एक भाई एक बहन हो तो टिपिकली माँ क्या कहती है, बहन है तू भाई का ख्याल रख, हाँ है, थोड़ी बड़ी हो गई उसके बाद गैस जलाना सीखो, हाँ? लड़के के ऊपर लेकिन वो सब नहीं होता। वो इसीलिए हम पेरेंट को ही प्रशिक्षण से जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि जब टीचर पेरेंट एसोसिएशन होती है, लेकिन पेरेंट्स को जब तक ये नहीं पढ़ाएंगे तो केवल स्कूल में कॉन्ट्रैक्ट देकर जेंडर सेंसिटाइजेशन होगा, ऐसा होगा सिर्फ नहीं। सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, इट हैज टू बी इंप्लीमेंटेड। गर्ल हु स्टैंडिंग, द गर्ल हु स्टैंड, या पूछिए आप पूछिए और फिर आप। माय नेम इज राशिदा, आई एम फ्रॉम गॉड्स ग्रेस स्कूल। सर, आई गॉट योर पॉइंट, you said about gender sensitization, and I think it should be start from our home only. Such like we should having some campaign about around our parents should be there, some program should be launched to give them knowledge. Parents should be involved just like us. Parents should be involved with us. Sir, जैसे आप बेस्ट टीचर्स अवार्ड देते हैं, वैसे संभव नहीं है बेस्ट पेरेंट अवार्ड करेंगे। Unless and until parents will not have लेकिन मैं ये बट केवल पुरस्कार देने के लिए नहीं, basically we want to engage with parents of all strata of society, that unless they understand and practice gender sensitization right from the home, it won't create an impact. And therefore I entirely agree with you. I am Malaika from Modern School Vasant Vihar. I had a few questions about gender pay parity. Like we all know in all gender pay parity? Yeah, like we all know in all occupations, even in sports, men are paid more than women. This लेकिन अभी तो दीपिका ज्यादा लेती है. Like men are paid more in sports. If a girl is paid 10 lakhs, like Virat Kohli may be paid 10 crores per match. ऐसा भी ज्यादा नहीं रहा है. This is also gone. But teachers at least, teachers के लेवल पे तो एक ही तनख्वाह होता है. मैं आपको बता सकता हूँ कि हमारे बिजनेस में तो महिलाओं को ज्यादा मिलता है. हाँ, यही तो है. ये अब ऐसा नहीं है. पे पैरिटी है. इतनी पे पैरिटी. बहुत. लेकिन जहाँ नहीं थी, वहाँ सरकार ने अब न्यूनतम मजदूरी जो 40% बढ़ाई, उसमें महिलाओं को, और हमने 3 काम किए. पहले तो पूरा गुजरात का डेयरी मूवमेंट, अब देश भर में भी डेयरी मूवमेंट में जो रोज पैसा जाता है वो घर के महिला के नाम पे जाता है. जो प्रॉपर्टी के कागजात होते हैं वो दोनों के संयुक्त नाम से होते हैं. और पे सभी जगह समान काम के लिए समान वेतन, ये कानून भी है, उसका अमल भी करते हैं. जहाँ कहीं भी कंप्लेंट आती है उसको पनिशमेंट भी है. Okay, Puneet is here. Puneet is the global head for Tata Beverages here with us. Global marketing head for Tata Beverages. Puneet, you're the one who's been leading this entire campaign with Network 18. So congratulations to you. मंत्री जी बता रहे थे कि ये बहुत संजीदा कैंपेन है एक ये. लेकिन ये जो चर्चा हो रही है यहाँ पे पुनीत जी, you know, gender sensitization. We can keep having this argument what schools should do, what parents should do. What do you think are, you know, some of maybe those critical 1 or 2 steps which you have got through this feedback as part of your petition, which you believe the minister should be aware of? Sure. I think gender sensitization, actually the thought really came from the overall theme of how do we, look at the bigger theme of women's safety. And we did a nationwide survey where people also really felt that, you know, women's safety and sports, which are the 2 topics that we were discussing today, are of utmost importance. The reason and what they felt is to really address some of these issues, it starts at a grassroots level. And the topic that we are discussing, which is gender sensitization, is actually to make this change both at a grassroots level, both at a personal, at a home level, as well as at a school level. So the idea is that, we actually garnered support
for getting a petition signed so that we can do this policy change. It becomes part of our school curriculum. But at the same time, while we hand over the petition to the Honorable Minister and ensure the policy changes, we ourselves are going to continue walking the talk. Yeah, that's So- what I'd like to know. That Yeah. how will you ensure? Yeah. Like, the House of Tatas, for Right, instance, right. is very well known for promoting gender parity. Absolutely, I want to know, how will you ensure that this movement which you have started, Yeah. you will continue with it? So we have various initiatives lined up. I mean, of course, when we started this program, we started internally also going around, and ensuring that this message is spread to our group also. And what we are doing in the short term is we have actually tied up with some of the, with the sports consultants, and we are actually initiating this thing called Suraksha, which is basically, going and empowering girls and teaching them self-defense techniques Very good. in the ये schools. मंत्री जी ने भी आज ये बिल्कुल कहा। सही है। Absolutely. ये So जरूरी we'll be है। going and taking this thing to about 1 lakh school girls Excellent. in Delhi, UP, Haryana, and Punjab, and similar such initiatives to ensure that the women's safety issue continues to getting there. Okay, you have a petition for the minister. Why Yes. don't you Yeah, hand over the thank petition? और एक कहना चाहता हूँ, आपको बहुत बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि कॉरपोरेट्स और मीडिया ये सभी इसमें जब जुड़ते हैं तभी शिक्षा सार्थक होती है, क्योंकि अपने देश में शिक्षा का बड़ा चैलेंज है। 1 करोड़ टीचर प्राध्यापक है, 29 करोड़ स्टूडेंट्स है, 50 करोड़ एक्टिव पेरेंट्स है, 20 करोड़ मेरे जैसे ग्रैंड पेरेंट्स है कि जो भी एक्टिव है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए आपको भी बधाई। लेकिन हम आगे ले जाएंगे। आज ही मैं एक घोषणा करना चाहता हूँ कि हमारा एक शगुन पोर्टल है, तो मैं एक उसमें विंडो निकालूंगा जेंडर सेंसिटाइजेशन, और इसके लिए जो भी कोई नए प्रयोग कर रहे हैं वो अपने फोटो अपलोड कर सकते, एक्टिविटी बता सकते, और कोई पाठ लिखने वाले टीचर्स को मैं सबको अपील करूंगा कि आप जेंडर सेंसिटाइजेशन के लिए कुछ नया एक्टिविटी तैयार करिए, नए पाठ तैयार करिए और वो भी हमें भेजिए, ताकि हम सबके क्राउड सोर्सिंग से ही इसको सार्थक बनाना चाहते। ये मैं करना चाहता हूं। Okay, Puneet Das has 2 petitions for the minister. Come and hand over these petitions. ये बीच के 3-4 लड़कियां आओ इधर 2-3 लड़का आओ। So there is one petition which is to do with gender sensitization, and there is one petition which is to do with ensuring that there is sports, physical education, which is mandatory at the school level. दोनों पिटीशन है, दोनों पिटीशन पर भी काम भी होगा, आपको रिपोर्ट भी होगा, और सब मिलके ही शिक्षा को भी अच्छा बनाएंगे और जेंडर सेंसिटाइजेशन भी लाएंगे। देश जैसा है वो हमारा है, हमें प्यारा है, लेकिन उसको और अच्छा बनाना है, स्वच्छ भारत सब तरह से। और आपके साथ नेटवर्क 18 along with टाटा टी अलार्म बजने से पहले जागो रे कैंपेन जो है, इसको भी हम लोग चालू रखेंगे। Thank you very much and thanks to all of you for coming for this special session. Thank you so much.